Hello and welcome to Obipedia, powered by Abhimanyu Wise. My name is Niharika Valia, and I am here today with you guys to tell something regarding a particular person who has just joined us, that is Mr. Ajay Yadav, who has cleared the exam of CAPF and now he is selected as an AC. तो अब ये AC बन चुके हैं. So let's welcome him with a particular cake and a little ceremony by the team Abhipedia. Thank you, ma'am. My pleasure. Thanks a lot, sir. The entire team of Abhipedia. तो हम मतलब उनको बताओ कि हम लोगों की तरफ से पूरा अभिपीडिया टीम की तरफ से आपको मतलब कांग्रेचुलेशन. तो एक बार फोन मारिए ताकि हम लोग भी Thank you so much, sir. कर सकता हूं हमें. Thank you so much, Go sir. ahead and blow up the candles so that. Virtually, ma'am. Yes, definitely. Okay. चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं. Thank you. तो Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, team Abhipedia, ma'am. Thank you so much, everyone. और तो वे मैम. Okay, I think what I can do is, this is what we are doing. The cake is very much wonderful, ma'am. ताली ताली. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. बस एक ही घाटा है, मैं अभी इसको खा नहीं सकता वहाँ पे. कोई बात नहीं, हम लोग पार्सल कराएंगे आपको. Definitely, वो हम कर देंगे. पार्सल वाली जिम्मेदारी हमारी. Thank you, ma'am. हमारे मतलब टीम अभिपीडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी है आपके लिए, तो जो कि आपको हम लोग पोस्ट जरूर भिजवाएंगे वहाँ पे. तो बस अभी फिलहाल आप ऐसे पकड़ सकते हैं इसको. Thanks, मैम. ये टोकन मैम काफी है मैम, मतलब थैंक यू वेरी मच. तो फिर आप लोग अपना इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए. ओके, कांग्रेचुलेशन अगेन. थैंक यू सो मच. So before I actually start with the interview, सबसे पहली चीज congratulations Mr. Ajay, because again एक एग्जाम को क्लियर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, and this is what he has done. So quickly moving on, आज हम ये समझने वाले हैं कि इन्होंने एग्जाम में किस तरीके से प्रिपरेशन रखी और आपको किस तरीके से चलना चाहिए, so that you can work and be a part of these kind of organizations, be it any organization in terms of competitive exams, civil services के किसी भी पोर्शन में आप जाते हैं, it's a respective thing, and at the same time उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. So let's move towards his journey of the entire struggle that he has gone through in terms of his studies as well as his life. Okay, so here I present Mr. Ajay Yadav, who has cleared the exam of CAPF AC 2019, and the result was declared in 2020. So good evening, sir. How are we today? Fine, ma'am. Fine. Okay, so अच्छा चलिए, then the very first thing जो normally students को रहता है कि when the result was declared, what was your exact thought process? Were you excited or you knew कि हाँ जी मेरा हो सकता है ये निकल जाएगा एग्जाम? Rather than being excited, since result जो था वो डिले होता जा रहा था टाइम टू टाइम, तो आई वॉज श्योर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आई वॉज श्योर कि मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा. बट एक होता है कि रिजल्ट आ जाए, मतलब एक वो स्लॉग है वो खत्म हो जाए. तो पहले रिजल्ट आना था दिसंबर, देन जनवरी, देन आफ्टर एट द लास्ट जनवरी, फिर ऑलमोस्ट फेब में इस ईयर में रिजल्ट आ गया. But the thing is, I was not prepared to expect double digit rank, and that was something I am very much thankful to the Almighty. Mr. Ajay Yadav Because, has been on 87th rank when we talk about the CAPF examination. All India 87th rank is definitely a wonderful rank to talk about. yes ma'am. Actually मैम ऐसा था कि पहला अटेम्प्ट था, तो मुझे रिलेटिवली नहीं पता था कि मतलब मैं अच्छा हूँ तो कितना ठीक हो रहा है, तो मुझे लगा ठीक है ऑलमोस्ट हो जाएगा. बट that was where. So अभी when you were studying about it, आपको क्या लगता है, मतलब कुछ लूप होल्स थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? मेरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन था इसमें जो होता है इंग्लिश वोकैब के लिए, Right. That was not up to the mark. So for that मुझे जो पेपर 1 और पेपर 2 एंड मोर ओवर इंटरव्यू से वो जो गैप था वो फिल करना था. तो उसके लिए क्योंकि एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन अनएक्सपेक्टेड होता है इसमें,
कि कौन सा वर्ड या कौन सा एंटोनिम सिनोनिम या वर्ड फॉर्मेशन आ जाए, तो उसके लिए इस अनसर्टेनिटी हटाने के लिए मुझे ऐसे प्रेसी राइटिंग, आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग यहाँ से वर्कआउट करना पड़ा। और इसके अलावा इंटरव्यू में मुझे ये जो लीड था इसको और गैप को और एनलार्ज करना था। So there you were working on your entire grammatical area throughout the area because अल्टीमेटली हर स्टूडेंट को आइडिया होता है कि कहाँ पर उसकी वीकनेस है और किस तरीके से उस पर काम करना है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने ये चीजें की। ओके, सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली व्हाट वर यू डूइंग और ऐसा क्या हुआ दैट यू शिफ्टेड टुवर्ड्स सीएपीएफ? Actually, I was fascinated towards uniform jobs because my father is also in ITBP and many of my relatives are also in CAPF. तो एक तो बचपन से ही उन कैंपसेस में हम रहे, ITBP कैंपसेस में, एंड I passed out from in schooling from KV ITBP, entire schooling is from KV ITBP. तो एम्बियंस एक तरह से बचपन से ही फैसिनेट करता था यूनिफॉर्म जॉब्स के। उसके बाद द थिंग विच वर्कड आउट फॉर मी दैट के माय फादर यूज्ड टू से कि ठीक है, अच्छी जॉब है, बहुत स्कोप है, और इसमें मतलब जॉब के थ्रिलर भी है और एक तरह से डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। Agreed. Yes, ma'am. Okay, as a person, he is someone उन्होंने बीटेक की है and then he was working somewhere और उन्होंने फिर अपनी वो जॉब छोड़ी and started preparing for this particular examination and prepared and cleared it in the very first attempt. Again, पहले attempt में clear करना मतलब आपको भी आइडिया भी नहीं होता एग्जाम का लेवल क्या रहता है क्या नहीं रहता, आप बस मेहनत करते चलते हैं और वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आ जाती है। So this is where I can say this is a blend of more of your hard work and a little of your success based on the luck, because again थोड़ा सा लक चाहिए होता है, बाकी सारा काम मेहनत करती है। ओके, सो हाउ हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ओवरऑल? Overall, my strategy was based on, means I call it TPT strategy, means first previous year test and then preparation, the core area, and then 10% is for T means test series. तो जो टेस्ट स्टार्टिंग में लगाने हैं वो प्रीवियस ईयर के टेस्ट, टू हैव एन आइडिया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हार्डनेस ऑफ द एग्जाम क्या है। Agreed. और एक तरह से अपने माइंड में एक खुद ग्राफ बनाना कि कितने टफनेस से मतलब एग्जाम का जो लेवल है बढ़ते जा रहा है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाना कि यूपीएससी के एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो मतलब उसमें क्वेश्चन की जो क्लैरिटी है वो कैसे रहेगी। एंड देन कम्स द पी पोर्शन, दैट इज कोर प्रिपरेशन, जिसमें बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको प्रिपेयर करना। एंड द वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज टूडेज कॉम्पिटिटिव एम्बियंस इज वैल्यू एडिशन। और उस वैल्यू एडिशन के लिए आई यूज टू प्रिफर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी एग्जाम्पल होगा, जो भी चीज़ होगी, दैट विल बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो जब हम किसी एग्जाम को लिखते हैं तो उसमें अगर हम करंट अफेयर्स और वैल्यू एडिशन करते हैं तो दैट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। Agreed that you are well ये informed. थोड़ा रेलेवेंट है। Yes, well informed. And the third portion was test series, and now this test series is mock test. And mock tests have mainly three benefits. That is, they will act as a filler. तो टॉपिक अगर छूट गया है तो उस टॉपिक को फिल कर देंगे। सेकंड पोर्शन विल बी टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आएगा उससे, टाइम टू टाइम हम अपना एक शेड्यूल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वीक मुझे मेरी रिलेटिव परफॉर्मेंस पता चली, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट पहला था। तो जैसे भी आपने कहा कि मतलब मेहनत करते जाना, लेकिन मॉक टेस्ट दे करके एक स्लॉट पता लग जाता है कि मतलब मैं यहाँ पर हूँ और अपने वीक एरिया से उस पर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ उसमें। That is correct. माय टीपीटी स्ट्रेटेजी। क्योंकि दिस इज वेरी वन आई कैन अग्री अपॉन, टेस्ट सीरीज के हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होती हैं। एक बार जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा मेरी कहाँ कहाँ पर गलतियां हैं, और वो पेपर में जाकर पता चले उससे तो अच्छा है पहले ही इवैल्यूएट करके हम उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। एंड दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग, आई बिलीव। ओके, सो in terms of the working, how has Abhipedia worked for you? Yes, actually, when I entered in that entire process, the thing is that I was very much less informed about the authentic sources. So more or less जो चल रहा है सब उसी को follow कर रहे थे. But the thing is that when I concluded, because आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना मतलब एक तरह से मेरी हॉबी थी,
और यूपीएससी के पेपर्स देखते भी रहता था। तो बट उसके अलावा मैंने देखा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। मतलब जैसे मार्केट में कोई, जैसे हम पीली बुक कह देते हैं, मार्केट में पीली बुक आ गई, लाल बुक आ गई, और उसी का ही रिवीजन चल रहा है ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म्स पर। तो हम्म ये चीजें स्ट्राइक करेगी मतलब। बट द थिंग विच आई जो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया विकिपीडिया के लिए, वो ये था कि एक तो पंक्चुअलिटी थी। वीडियो शेड्यूल आ रहे हैं, जिस टाइम पर अगर कहा गया है उसी टाइम पर आता है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द viewer, aspirant, and that faculty side. Second thing which I was very much fascinated was selected faculty. मतलब ऐसा कुछ नहीं जो खुद नहीं करता, मतलब कि वो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है जब कुछ सेलेक्टेड फैकल्टी आपको पढ़ाता है, तो उसको पता है कि टेक्निकल, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक पोर्शन दोनों डील कर सकते हैं। कि तैयारी के दौरान जो एकेडमिक पोर्शन पे वर्कआउट एंड नॉन एकेडमिक, जैसे साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट, हमारा मेंटल एटीट्यूड वाला एग्जाम, वो सारी चीजें पता होती हैं जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट होता है। एंड इसके अलावा एसआरटी भी मैंने अभी पीयर से प्रिपेयर किए थे। एसआरटी जो इंटरव्यू मुझे काफी हेल्पफुल थे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो अभी पीडर डिफेंस से किए थे मैंने। और इसके अलावा लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट फर्स्ट, कि इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो बिल्डअप करनी है, वो मैंने अभी पीडर की जो टर्म्स होती हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में मतलब दे आर नॉट आस्किंग लाइक अ बैंकर और अकाउंटेंट, बट दे अग्री। आर आस्किंग कि आपको बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स पता है। हाँ जी, वो तो है ही। ओके तो ये सो चीजें मैंने वहां से निकाली। एंड माई पंक्चुअल वीडियोज कैन बी क्लब टू माई शेड्यूल। तो इसीलिए ये मुझे बेनिफिट मिला कि मेरा शेड्यूल को हैम्पर नहीं किया। जब तक जो जैसे सर ने, अतुल सर ने अगर प्रॉमिस किया कि ये वीडियो तब तक आ जाएंगे, तो वो तब तक आ गए, ऐसा था। as such, Abhipedia defense and the entire working of the AC CAPF की preparation, it was all handled by Mr. Atul Sambaria, who's now an assistant commandant, and he is into his training. He was the founder of this entire working, and he started this initiative. And it's good to know कि सर का वो initiative कहीं ना कहीं एक workout कर रहा है, and it is definitely his part where he played in terms of discipline, in terms of his authenticity. So that is where we all are here and talking to him, and at the same time we have him, that is Atul sir, in terms of his efforts. So this is where I can talk about it. Again, examination, आपकी मेहनत प्लस आपकी करेक्ट गाइडेंस, दोनों का ब्लेंड कहीं ना कहीं पे ऑफ करता है, क्योंकि हर कोई प्रिपेयर करता है, एवरीबडी स्टडीज, बट कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, और साथ साथ कैसे पढ़े, ये तीन चीजें कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं एक ऐसे स्टूडेंट को जो सिलेक्ट हो जाता है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो एक एस्पिरेंट बनकर रह जाता है। ओके सो since you have been preparing for UPSC and all, current affairs आप किस तरीके से चल रहे थे in terms of current affairs? करंट अफेयर्स के लिए एक्चुअली मैम दो ऑप्शंस रहते हैं जनरली। एक तो जो मार्केट में मंथली मैगजीन आती है, अपार्ट फ्रॉम दैट डेली न्यूज़पेपर। सो आई प्रीफर डेली न्यूज़पेपर, Okay. टाइम टू टाइम डेली, क्योंकि एक न्यूज़ का अगर बेस बन गया है तो कल उस न्यूज़ में क्या हुआ वो और मजा आता, मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता था कि कल ये बात होगी। तो उससे वो जो यूपीएससी वाला पार्ट है, पॉलिटिकल एटीट्यूड हटा देना, उससे गॉसिपिंग वाला मैटर हटा देना, हाइप वाला मैटर हटा करके, जैसे जो उससे न्यूज निकलती है जो यूपीएससी पूछ सकता है, तो उसको ग्रेस्प करना, वो मैंने मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। एंड आई प्रीफर इंडियन एक्सप्रेस फॉर दैट। Okay, now this is where we can talk about. Most of the students always talk about कि the Hindu is a very good newspaper. इन्होंने अपनी preparation Indian Express से की है, and that is again something new to learn there. Okay, so how was the entire stressful period? क्योंकि obviously बात है, पहले आप prepare कर रहे थे 8-9 महीने, आपने उस particular चीज को दिए थे कि अब तो मैंने बैठकर सिर्फ पढ़ाई करनी है. Was it very very stressful, or how did you handle that entire stress? Actually, it was stressful because I entered late in that entire process because due to BTech और फिर job की वजह से, this was my Right. last attempt also. So my Okay. age was accounting to 25, so which is the blockade, means after 25 you can't opt for it. So this was my first or last attempt. So that's why I was very much stressful also कि ये निकालना ही निकालना है. So but the thing is that I channelized that stress to my energy, and I followed two terms which I learned from ethics, the material of ethics which we learned for essays. तो कहीं पढ़ा मैंने बुक्स में अच्छी कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एसक्यू एंड ईक्यू। सो मैं जब स्टार्टिंग में ही था, आई वाज लकी कि स्टार्टिंग में ही मैंने पहले से जो एसेज आते हैं उसमें एथिकल एसेज जो आते हैं वो पहले पढ़ने के लिए मैंने कुछ एक दो बुक्स पढ़े।
तो उन बुक से जो पढ़ा मैंने, एंड दैट हेल्प्स इन एंटायर जर्नी. दैट वाज SQ एंड EQ मींस स्पिरिचुअल कोशेंट एंड इमोशनल कोशेंट. Emotional quotient. तो स्पिरिचुअल कोशेंट का मुझे बेनिफिट ये लगा कि आई वाज वेरी मच कनेक्टेड टू मींस माय इंटरनल एनर्जी, एंड देन आई चैनलाइज दैट एनर्जी. और उसी का फायदा EQ पर पड़ा कि मैं अपने मतलब मेरे इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेबल कर सकता था और एक्सप्रेस किया मैंने. जब इफ आई एम मतलब जब किसी दिन पढ़ना नहीं है, मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, तो इसको लेबल किया, यस स्ट्रेस है, नहीं पढ़ना तो कोई हल्का वाला मटेरियल पढ़ लेते हैं. मेरी हॉबी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में, उसको पढ़ लेते हैं. बट द Hmm. थिंग इज आई हैव टू स्टडी एनी हाउ, एंड एट लास्ट आई रेगुलेटेड दोज पॉइंट्स. So that was a strategy which I learned from a book that was ruler strategy. Means recognize, understand, label, express and regulate your emotions. So मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं इस स्ट्रेटेजी को पढ़ने के बाद एंटायर जर्नी में मतलब फॉलो करूं. तो इससे स्ट्रेस हुआ काफी बार, बट द थिंग इज कि कुछ दिनों में वो जो पहले बहुत ज्यादा दिन का होता था, फिर एट लास्ट वो धीरे धीरे जब एनर्जी को चैनलाइज करते तो स्ट्रेस बिल्कुल थोड़ा कम हो गया. क्योंकि सारा फोकस पढ़ाई पर और अपने टारगेट की तरफ हो गया. हाँ, और बाकी प्रेशर तो रहता ही है मैम. परफॉर्मेंस प्रेशर तो एज ऑब्वियस हमेशा ही रहता है. अग्रीड. कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करता है. अगर वो परफॉर्मेंस प्रेशर ना हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो पंप नहीं मिलता कि व्हाट शुड आई डू. बिकॉज जब स्ट्रेस होता है तो इंसान कहता है कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वहीं से शायद वो एनर्जी जो होती है आपकी वो चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज यू नो कि अब मुझे ये करना है. यस यस ओके. द थिंग, और यही मैं मतलब आगे भी मैं यही कहना मतलब कि ना ये जो प्रेशर है मतलब इसको अगर एक ऑप्टिमल लेवल पे डील कर लिया जाए तो एक तरह से ये मतलब बहुत बेनिफिशियल चीज है. मुझे ऐसा लगा अग्रीड. मतलब इस बिकॉज चीज आई में. थिंक ज्यादा मुश्किल ये होता है. सी द पॉइंट इज व्हेन मिस्टर यादव स्टार्टेड इट, कहीं ना कहीं ही लेफ्ट हिज जॉब एंड स्टार्टेड स्टडिंग. सो देयर इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. सबके लिए हो जाता है बिकॉज यू आर पुटिंग वन थिंग एट स्टेक, और आप शुरू हो जाते हो दूसरी तरफ जाना, और आपको ये भी नहीं पता था कि अच्छा वहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा. तो यू गिव 110% की मुझे यहाँ जाना है, तो आप बिना डाउट के चलोगे तो आप ज्यादा फोकस से चल पाओगे. ओके. यस मैम. सो हाउ वाज योर इंटरव्यू? इंटरव्यू किस तरह से रहा था आपका? बहुत वैल्यूबल मतलब प्रीशियस 30 to 35 मिनट्स थे मेरे. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पैनल. So you were scared of मैंने something? सुना ही था कि यस यस देयर वाज प्रेशर, मतलब बहुत प्रेशर था. बट द थिंग इज कि मुझे किसी ने ये कहा था कि मतलब आप ऐसे जाओ कि मतलब बिल्कुल फ्री माइंड से होके जाओ. मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे उसमें, हम्म. और प्रिपेयर मतलब डेफ वगैरह को प्रिपेयर करके तो जाओ, बट लर्निंग एटीट्यूड से जाओगे तो पक्का सीख के आओगे. और मैं वहाँ मतलब बहुत स्ट्रेस में था, और जिस तरह से उन्होंने जिस फ्लो में काफी चीजें मुझे खुद को नहीं पता थी जो इंटरव्यू के बाद पता चली कि उन्होंने मुझसे एक्सप्लोर करवाई. बिकॉज दे प्रोवोक्ड मी ऑन सम क्वेश्चंस. दे सेड हमें समझ ही नहीं आया, वी डोंट गेट यू, मतलब योर आंसर इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. तो Oh. ऐसे करके मतलब वहाँ पे चीजें चली. बट द थिंग इज कि नेवर गिव अप अप्रोच जो थी इंटरव्यू में, उसने बहुत हेल्प की मेरे. जैसे मैं आपको अपने क्वेश्चंस बताऊं, एक क्वेश्चन था कि दे आस्क्ड मी अबाउट माय हॉबीज. Right. So I started watching Bollywood movies. So they said, okay, so have you seen movie? Have you watched the movie Article 15? So that was Hmm. means out of blue means Article 15. I have watched it. Means yes, sir. Ayushmann Khurrana is in leading role. Okay, that one. So Mr. Ajay, being an assistant commander, what is your take on that movie? How do you relate that movie to yourself? So this was something कुछ अलग ही था. तो फिर मैंने थोड़ा Definitely. 10 मतलब 5 से 10 सेकंड का गैप लिया, and then I delivered my answer. And that was they were impressed with that answer because there was no cross question for that answer. And in SRTs also they have a different technique, like they were provoking me. They gave me an SRT कि आप if you are posted at means Srinagar, and then कुछ कश्मीरी youth आते हैं and they just break the barricade, what will be your plan of action? So they found to me कि हम भी stereotype mentality तो नहीं है. And they Hmm. provoked me कि फायरिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप, they are मतलब मिस्टीरियस ये वो. सो मतलब दैट थिंग दैट मीन्स उस टाइम मैंने अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा. एंड द बेसिक्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कोई किसी को गोली चलाने की पावर है ही नहीं लास्ट टाइम पे. Right. सो वो जो ना उस पर कंट्रोल है वो उस एग्जाम पीरियड में मेरा तो टेम्पररी था, क्योंकि एक्चुअली समटाइम्स कि हम बोल देते हैं आंसर में, क्योंकि Hmm. पैनल काफी एजुकेटेड और मतलब उनके एक्सपीरियंस के सामने गया. बट बाद में मुझे पता चला कि वो जो प्रोवोकेशन है, जिस तरह से वो कहते हैं उन चीजों को प्रोवोक करते हैं चीजों को, उसमें हमारी रियल आइडेंटिटी निकाल ही लेते हैं.
दिस वाज क्योंकि वो समथिंग मुझे व्हिच में आई रॉ लर्न सेल्फ देखनी है कि फ्रॉम अगर हम क्या है एग्जैक्टली सो आपको वो स्ट्रेस एग्जैक्टली। में तो डाल देते स्टार्टिंग में हैं। वो, हाँ स्टार्टिंग में धीरे से लेवल अप करेंगे, ये बहुत वैसी सिचुएशन है, अब तो आपको करना ही होगा। एंड देन अगर आप अपने स्टार्टिंग के आंसर पर फर्म हो, दे आर वेरी हम्म। मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। हाँ देन अगेन वो आपका एसक्यू और ईक्यू दोनों इकट्ठा काम किया, बिकॉज अगेन इफ यू आर इमोशनली स्टेबल एट द मोमेंट एंड यू नो कि सामने वाली चीज से प्रोवोक नहीं होना है, इट वर्क्स। ओके। यस, एक क्वेश्चन हम डायरेक्टली पूछा उन्होंने, मतलब कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट, उनको हम वर्कर बना सकते हैं। तो जो बांग्लादेश बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आर एंड द बर्डन और इंडियन पॉपुलेशन, हमें तो निकाल देना चाहिए। दिस वाज देयर एग्जैक्ट वर्ड। द थिंग इज कि वो अंदर से देखना चाहते हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि इनका खुद का एक ओपिनियन है। जबकि राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन सिस्टम के हिसाब से वो तो इंडिया में तो बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को भी हैं। हम्म। राइट टू एजुकेशन और राइट टू लाइफ हम फॉरेनर्स को भी देते हैं। इवन एजुकेशन के अलावा भी रिलीजन का राइट भी देते हैं। तो वो देखना चाहते हैं वो चीज़, हमें पता है कि हम प्रोवोक। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे जो वहां से निकलने का बहुत मतलब अच्छी लगी, कि उनका जो तरीका है फ्लो में चीज़ों को करने का, वो दैट वाज वेरी मच वैल्यू एडेड टू द क्वेश्चंस आर डेफिनेटली समथिंग जो शायद किसी भी स्टूडेंट को स्ट्रेस में डाल दें, एंड यू हैव हैंडल्ड इट वेल। मी। एक्सपेक्ट नहीं रहे वहाँ पे वो क्वेश्चन। ओके सो हाउ डिड योर फिजिकल एग्जामिनेशन गो, मतलब उसमें कैसा रहा था आपका? सो वर यू प्रिपेयरिंग फिजिकल और एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन 2 या 3 दिन का प्रोसेस था। तो राइट। माय सेंटर वाज इन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा सीएचएस। तो वैसे इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब इतना टफ होता नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एसएसबी, बेसिक एग्जामिनेशन है दैट आई नॉर्मली कैन। होता है। तो हाँ बेसिक एग्जामिनेशन था। बट जनरली जो स्टूडेंट्स बाहर हुए, सॉरी एस्पिरेंट्स जो बाहर हुए, वो बाहर हुए थे लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप अगेन थोड़ी ज्यादा तो डिफिकल्ट होती है बिकॉज स्प्रिंट रेसिंग तो मोस्टली लोग कर लेते हैं। एंड शॉर्ट पुट में एक ही चांस होता है, इसलिए चांसेस राइट। मतलब मतलब पहली बार में ही आपको करना होता है। अदरवाइज वो थोड़ा स्मूथ ही था फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके सो ओके देन I think we have discussed a good part of that. What was your difference in strategy in paper one and paper two? Because obviously paper one MCQ based हो जाता है, paper two आपका writing सॉरी। description based हो जाता है. So how were you dealing with it? पेपर वन और पेपर टू जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो उनमें डिफरेंस कहाँ पर और किस तरीके से किया था? पेपर वन में मैम, आपने बहुत सारी बोला है ना, पेपर वन पेपर टू दोनों में मतलब अलग चीज देखते हैं। पेपर वन ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब उसमें जनरली हम क्या करते हैं, सीएससी जितनी डेप्थ में बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स दोनों में सेम है। राइट। सीएपीएफ के कोर्स की बुक्स और सीएससी की बुक्स सेम है, बट हम्म। हम उसको उतनी ही डेप्थ से पढ़ते हैं, विच शुड बी अवॉइडेड अगर इस एग्जाम में जाना है तो। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग इज दैट उतना पढ़ने से कंसेप्चुअल आइडिया आ जाए, क्वेश्चंस निकल रहे हैं, और बेसिक चीजें जो उससे निकल सकती हैं उस क्वेश्चन से, वो पढ़ना है। एजुकेटेड गैस लगाने की स्ट्रेटेजी लेनी ही है मॉक्स के लिए, पेपर वन अगर हम्म। निकालना है, क्योंकि कट ऑफ ईयर बाय ईयर बढ़ रही है कट ऑफ, और सीट्स भी कम हो रहे हैं उस हिसाब से। Okay. So as an aspirant, which part of the syllabus is something जहां पर एक स्टूडेंट को ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सोच रहे हैं तो, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सीएपीएफ? अकॉर्डिंग टू मी मैम, ऐसे एंड इंटरव्यू, बेसिकली इन दो का जो क्लब करके हम वेटेज देखें तो 150 प्लस 80 मीन 230 हो जाता ओके। है। 40% के आसपास वेटेज है, 4 ऐसे प्लस एक इंटरव्यू। और कई बार पहले हम ऐसे की बात कर लेते हैं, तो अगर ऐसे हमारे इम्प्रूव्ड हैं, थोड़ा वैल्यू एडेड ऐसे हैं, तो वो एक एज देते हैं। और पर ऐसे अगर हम 2 या 4 मार्क्स ज्यादा ले आते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारी सर्विस अलॉटमेंट में फायदा करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में मतलब हम एट मो जैसे मैंने प्रिपेयर किया तो ऑलमोस्ट 20 डेज का एक स्लॉट लेकर के ही किया था। उसमें मतलब स्टार्टिंग में खुद को डेफ को देखना, डेफ कैसा है, डेफ में क्या पूछ सकते हैं, देन फिर एक्सपर्ट एडवाइस, ऑनलाइन गाइडेंस, ये सब किया था। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब कंपटीशन का लेवल जा रहा है, उस हिसाब से मतलब 10 नंबर की एज भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो वो कोई और एज ले लेगा। अग्रीड। तो फॉर कंपटीशन दैट बहुत ज्यादा है। टू मी, यस मैम, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जिसपे हमें मतलब पॉलिश होकर के जाना चाहिए।
So overall, what would be your advice to conclude the entire working where you have worked so hard to become an AC again? So जब हम इनकी बात करते हैं, आपका एक UPSC aspirant के तौर पर, what is your advice to all those who are looking forward to give all these exams, be it CA, PF or the entire working of UPSC? यस मैम, यूपीएससी पर्टिकुलरली, जैसे यूपीएससी काफ़ी और एग्जाम्स है, मतलब अपने आप में काफ़ी पोर्टफोलियोज के एग्जाम्स रहते हैं इसमें। Right. तो कोई भी एक एग्जाम हो यूपीएससी का, उसकी मतलब एक तो यूटिलाइज इन दी वॉरियर लाइक स्पिरिट, कि एक बार में नहीं हुआ, आई एम फॉर्चुनेट एंड लकी कि हो गया, बट नहीं हुआ तो वो स्पिरिट नहीं छोड़नी। और विद इन, मतलब अगर आप तैयारी भी कर रहे हो और पहला भी अटेम्प्ट है, तो भी कई बार फ्लॉग्स लगता है आपको, डार्कनेस से दिखती है, कभी लगता है गाइडेंस ऑथेंटिक है नहीं, बट उस टाइम पर वो वॉरियर लाइक स्पिरिट आपको रखनी है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट यूपीएससी किसी भी एग्जाम में आप बेसिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक्स, और ये हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसमें आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी ही पड़ेगी किसी भी उस चीज के लिए। Okay, so what I can get from your wordings is कि hard work, perseverance, और वो कैसे बनेगा? वो बनेगा आपके बेसिक्स जितने आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उससे आपकी वो नींव तैयार हो जाती है, जिससे आप आगे आपके जो शॉक्स लगेंगे वो नींव जो है वो झेल लेगी। सो अगेन क्या बात हुई? बेसिक्स पर वर्क करते हैं हम, साथ ही साथ बेसिक्स जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, तो रोकना नहीं है, बस पढ़ते जाना है। और अपने जो ड्रीम्स आप सोचते हो टू बिकम CAPF, AC और एनी अदर एग्जामिनेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द UPSC, अगेन एक बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू कितनी गवर्नमेंट लाइंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अच्छी जॉब्स हैं वो सारी निकलती हैं। सो वहां पर थोड़ी सी मेहनत, एक्चुअली बहुत सारी मेहनत और थोड़ा सा लक, ये दोनों चीजें काम करती हैं। Okay, so this is where I conclude my video, but at the same time, I would like to thank you for being there for so long and sharing all your views regarding the selection. Thank you so much for joining us. Thank you, ma'am. Thank you, Team Avipedia, and special thanks to, because that was a surprise to me, and to recognize that hard work or whatever I have achieved, to recognize that. And thanks from that perspective when I was preparing, and thanks from that perspective when I'm selected. Thank you very much for that support. Thank you so much for joining and keep preparing at the same time. सपने देखना मत छोड़िए, बट सपने देख रहे होंगे। अगर इफ यू रियली मूव फॉरवर्ड टू बिकम एन AC, तो सिर्फ सोचना काफी नहीं होगा, यू विल हैव टू एक्ट हार्ड एंड एट द सेम टाइम सपनों को मटेरियलाइज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करते रहिए एंड वी विल बी ब्रिंगिंग अप मोर फॉर यू गाइस टू सी कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं लोग जो मेहनत करके इस पर्टिकुलर रैंक तक पहुंचते हैं। So this is where I say goodbye to everyone. Keep your spirits high और पढ़ते रहिए. Thank you.